آج نہ صرف تم مسکان کا ہاتھ تھامو گے بلکہ ایک نئی دنیا ذمہ داریوں کی بھی تھامو گے۔ میرا اور مسکان کا جو رشتہ ہے وہ تو آپ دونوں کی دعاؤں کا ہی رنگ ہوگا۔ بیٹا رشتے نبھانا ایک فن ہے، اور یہ فن دل کی سچائی سے نکھرتا ہے۔ آپ لوگوں نے جو مجھے محبت سکھائی ہے، جو صبر سکھایا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ اپنی زندگی میں اسی کا بیج بوں گا۔ راہیم بیٹا، محبت صرف خوشیوں میں نہیں، آزمائشوں میں بھی اپنی اصلیت دکھاتی ہے۔ پتہ ہے سچی محبت وہ ہوتی ہے جو وقت کے تھپیڑے کھا کے بھی مضبوط رہتی ہے، قائم رہتی ہے۔ ایک بات اور بیٹا، رشتے زمین پہ رب کی وہ تحریریں ہوتی ہیں جو وقت کے ساتھ پروان چڑھتی ہیں، لیکن بارش رب کی مہربانی سے ہوتی ہے۔ کوشش تمہاری، کامیابی اس کی رحمت۔ بہو تو بیٹی جیسی ہوتی ہے، خوشبو کی طرح گھر کا ہر کونا کونا مہکا دیتی ہے۔ اور میں دعا کرتی ہوں کہ جب مسکان میرے گھر آئے نا، خوشیاں ہی خوشیاں ہوں، بس میرے گھر کا ہر کونا کونا خوشبو سے مہک جائے۔ آمین۔ بھائی خیریت تو ہے؟ آج دونوں شاعر بنے ہوئے۔ پتہ ہے میاں صاحبزادے، مجھ سے زیادہ خوشی تو آپ دونوں کو ہے۔ یہ دن ماں باپ کے لیے خاص ترین دنوں میں سے ایک ہوتا ہے، اور خوشی لفظوں میں بیان نہیں کی جا سکتی۔ مسکان کی منگنی طے ہو گئی ہے، مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے۔ ویسے اتنی دعائیں اس کے لیے دل سے نکل رہی ہیں، اللہ اس کا نصیب اچھا کرے۔ مسکان ہماری بچی کہ ہے۔ اللہ کرے راہم کے دل میں اس کے لیے محبت ہو، قدر ہو، ہمیشہ ہمیشہ قائم رہے وہ۔ آمین۔ کاش ہمارے حالات اچھے ہوتے تو آج میں بیٹی مسکان کی شادی دھوم دھام سے کرتا، اور جو خواب رفیق اور شناز نے دیکھے نا، ان خوابوں کی تکمیل ان کو ملتی۔ آپ نے بس اتنا کہہ دیا نا، میرا دل اتنا بڑا ہو گیا۔ کوئی بات نہیں، اگر حالات تنگ ہیں تو کیا ہوا، دل تو بڑے ہیں نا۔ ہاں لیکن پھر بھی رفیق کی تھوڑی بہت ہیلپ کرنی پڑے گی، منگنی میں اتنا خرچہ ہو گیا ہے، اب شادی کا بوجھ چلو تھوڑا بہت تو ہلکا ہوگا نا ان کا۔ یہ ٹھیک رہے گا ویسے، کیونکہ رفیق نے ہمیشہ زندگی میں میرا بہت مان رکھا ہے، اور جو رشتے ہوتے ہیں وہ ایسے ہی مشکل وقت میں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں، تھام لیتے ہیں ایک دوسرے کو۔ میرا خیال ہے اس وقت انہیں ہماری ضرورت ہے۔ یہ جو رشتے ہوتے ہیں نا، یہ خون کے نہیں، خلوص کے محتاج ہوتے ہیں۔ ہم جو بھی کریں گے نا، محبت اور دعاؤں کی صورت میں ہمارے سامنے آ جائے گا۔ امبر، اگر میری کوئی بیٹی ہوتی نا تو مجھے اس سے اتنا ہی پیار ہوتا ہے جتنا مسکان سے۔ اللہ کرے مسکان کے ساتھ وہ سب نہ ہو جو ایمان کے ساتھ ہو۔
अल्लाह करे इसका शौहर इसकी कदर करे, मोहब्बत करे इससे हमेशा के लिए, जैसे आप मेरी करते हैं। बहन की मंगनी है और मेरे शोहर की मौजूदगी मेरे लिए सबसे ज़्यादा तकलीफदा बन चुकी है। मैं खुद से कहती हूँ कि मैं उस घर की बहू नहीं हूँ, फिर मैं क्यों नहीं जा सकती, मगर मन समझाती है कि वहाँ सब रिश्तेदार मौजूद होंगे और ऐसी जगहों पर बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। अभी हम ये बात कर ही रहे होते हैं कि दरवाजे पर सलाम की आवाज़ आती है। शाहमीर भी आ पहुँचा है और इस वक्त उसका आना बिल्कुल मुनासिब नहीं। मैं नहीं चाहती कि किसी को बात बनाने का मौका मिले। दूसरी तरफ मुस्कान और राहिम की शादी का दिन भी आ चुका है, लेकिन जैसे ही शाहमीर वहां पहुंचेगा, ईमान का बाप सख्त नाराज होगा कि उसने शाहमीर को बुलाना ही क्यों था। ईमान अब अम्बल बेगम के पास जाकर यही कहने वाली है कि वो शाहमीर को घर वापस भेज दें, क्योंकि उसके शौहर की मौजूदगी उसके लिए बेइज्जती का बास बन रही है। इसी दौरान शाहमीर के करीब वो वक्त भी आने वाला है जब उसे मानूर और उसकी माँ की असला हकीकत का अंदाज़ा होने लगेगा। अभी तो उन्होंने हजार बहानों से उसे फिर से अपनी बातों में उलझा लिया है, मगर बहुत जल्द शाहमीर के सामने उनकी पूरी सच्चाई खुलकर आ जाएगी और फिर किसी वजाहत की कोई गुंजाइश नहीं बचेगी। आज मेरी बहन की मंगनी है, खुशी का दिन होना चाहिए था, मगर मेरे दिल में अजीब सी घटन और दुख है। मेरे शोहर की मौजूदगी मेरे लिए अजीत का बास बन चुकी है। मैं खुद को बार बार समझाती हूँ कि मैं इस घर की बहू नहीं रही तो फिर मैं उस तकरीब में जाने पर क्यों मजबूर हूँ, मगर मानो नरमी से समझाती है कि बेटी, रिश्तों में बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। खानदान के लोग होंगे, उनके सामने अपना आप संभालना पड़ता है। मैं खामोश हो जाती हूँ, दिल जैसे किसी बोझ तले दब जाता है। अभी हम ये बात कर ही रहे होते हैं कि अचानक दरवाजे से अस्सलाम वालेकुम की आवाज़ आती है। सब चौंक कर देखते हैं, शाहमीर आ चुका है। उसका इस वक्त आ जाना सबके लिए हैरानी और मेरे लिए मज़ीद बेचैनी का सबब बन जाता है। ये वक्त उसके आने का नहीं था और मैं जानती थी कि उसकी मौजूदगी से बहुत सी बातें, बहुत से सवाल पैदा होंगे। मैं घबराकर अंदर ही अंदर सोचती हूँ कि कहीं कोई किसी के सामने कोई ऐसी बात न कर दे जो मुझे और ज़्यादा बेइज्जत कर दे। इधर मुस्कान और राहीम की शादी की तैयारियाँ भी अरूज पर हैं। खुशियों का माहौल है, मगर पसे मंजर में एक तूफान दब्बे कदमों चल रहा है। जैसे ही शाहमीर शादी में पहुंचेगा, ईमान का बाप शदीद नाराज होगा। वो हमेशा से ये समझता रहा है कि ईमान ने शाहमीर से दूरी अख्तियार की है, उसलिए शाहमीर का वहां आना उसे गवारा नहीं होगा। ईमान खुद भी इस सूरत हाल से परेशान है। वो अम्बल बेगम के पास जाकर रूहान से आवाज में कहेगी कि खाला, प्लीज शाहमीर को घर वापस भेज दें। उसके शौहर की मौजूदगी उसे बार बार एहसास शर्मिंदगी दिला रही है। वो नहीं चाहती कि लोग इसके रिश्ते को मजाक बिनाएं या उसकी बेइज्जती का कोई पहलू निकल आए। उसी दौरान एक और कहानी भी खामोशी से अपना रुख बदल रही है। शामिर जिस सच्चाई से बेखबर है, वो आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब आ रही है। मनूर और उसकी माँ ने अभी तक बहाने बनाकर शाहमीर को अपनी बातों में उलझा रखा है। वो उसकी कमजोरियों को जानती हैं। वो जानती हैं कि उसे जज्बाती तौर पर कैसे काबू में रखना है। इसीलिए वो हर बात को घुमा कर उसके सामने पेश करती हैं ताकि वो उनकी हकीकत तक न पहुंच पाए। मगर हर पर्दा हमेशा कायम नहीं रहता। बहुत जल्द एक ऐसा वाकया सामने आएगा। हाल की रोशनियां जैसे धुंधला रही थीं, मगर असल धुंध तो मेरे दिल में थी। मैं लोगों के दरमियान खड़ी थी, मगर खुद को तन्हा महसूस कर रही थी। हर गुजरते लम्हे के साथ मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। बहन की मंगनी का शोर, मुबारकबादों की आवाज़ें, हंसते चेहरों की चमक, सब कुछ मेरे कानों के पास से गुजर तो रहा था, मगर मेरे दिल तक कुछ नहीं पहुंच रहा था। बस एक ही ख्याल बार बार जहन में आ रहा था कि आज शाहमीर का यहाँ आना सब कुछ बिगाड़ देगा। शाहमीर कमरे में दाखिल हुआ तो उसकी नज़रें मुझ पर रख गईं। उसके चेहरे पर हिर्त, अफसोस और एक अजीब सा दुख था, जैसे उसे अब भी यकीन न आ रहा हो कि मैं उसकी जिंदगी से दूर हो चुकी हूँ। मैंने फौरन नज़र चरा ली। मैं नहीं चाहती थी कि कोई मेरी आंखों में वो टोटन देख ले जो मैं खुद से भी छिपा रही थी। मगर आसपास के लोगों की सरगोशियां बंद नहीं हो रही थीं। कुछ औरतें एक दूसरे के कानों में झुककर कह रही थीं, ये देखो दोनों एक ही जगह
हालात तो खराब ही होंगे। मैंने अपने दिल को मजबूत करने की कोशिश की, मगर जैसे ही मैंने ईमान को अंबल बेगम के पास जाते देखा, मेरा सांस अटक गया। ईमान आंखों में नमी लिए बेचैनी से कह रही थी, खाला प्लीज कुछ कीजिए, शाहमीर को वापस भेज दें। मेरे शवहर का यहाँ होना और फिर उनका आ जाना, ये सब बहुत गलत लग रहा है। लोग बातें बनाएंगे, मुझे बुरा कहा जाएगा, मेरी इज्जत मुश्किल में पड़ जाएगी। अंबल बेगम ने उसे तसल्ली दी, मगर वो खुद भी परेशान हो गई थीं। वो जानती थीं कि अगर शाहमीर यहाँ रहा तो हालात हाथ से निकल जाएंगे। घर के बड़े, खानदान के लोग सब किसी न किसी तरह उलझ जाएंगे। दूसरी तरफ शाहमीर अभी तक सब कुछ खामोशी से देख रहा था। उसके पास बहुत से सवाल थे जिनके जवाब उसे अभी तक नहीं मिले थे। मानूर और उसकी माँ ने उसे इतने मजबूत झूठों में बांध रखा था कि वह चाहकर भी हकीकत तक नहीं पहुंच पा रहा था। मगर आज इस शादी के हंगामे में एक ऐसी हरकत होने वाली थी जो सब कुछ बदल डालेगी। मानूर की माँ एक कोने में खड़ी किसी औरत से तेजी से बात कर रही थी और वो औरत घबरा कर कह रही थी, ये बात अगर शाहमीर तक पहुंच गई तो सब खत्म हो जाएगा। और मानूर की माँ ने गुस्से से उसकी कलाई पकड़कर कहा, जबान बंद रखो, हमें अपनी बात मनवानी है। शाहमीर हमारी गिरफ्त में है, वो हमारी मर्जी के बगैर कुछ नहीं करेगा। जो मैं कह रही हूँ वही करो। उनकी आवाज़ बहुत आहिस्ता थी, मगर किस्मत के फैसले हमेशा खामोशी में ही बदलते हैं। उन्हीं लम्हों में शाहमीर पीछे से वहां आ निकला और उसके कदम वहीं रख गए। उसकी आंखें फैल गईं। उसके दिल ने पहली बार शक की सख्त चोट महसूस की। मैं किसके हाथों में खेलता रहा हूँ? उसकी आवाज़ सहमे हुए बच्चे की तरह थिकी हुई थी। बस यही वो लम्हा था जब सच्चाई का पर्दा लर्जने लगा। वो खुशियों भरा हाल अब एक ऐसे तूफान का मरकज बन चुका था जो बहुत जल्द सबको अपनी लपेट में लेने वाला था। और इस तूफान में सबसे ज्यादा टूटने वाला दिल शाहमीर का था। शाहमीर के कदम जैसे जमीन में धंस गए थे। उसने वो सब सुन तो लिया था, मगर उसके दिमाग ने अभी तक पूरी तरह उसे कबूल नहीं किया था। दिल जैसे एक लम्हे में खाली हो गया था। वो चंद सेकंड तक साख्त खड़ा रहा, आंखों में बेआतबारी की धन दौड़, सांसों में लर्जिश थी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके आसपास की सब आवाजें, सब लोग, सब हरकतें एकदम धुंधला गई हूं। आंटी, ये क्या हो रहा है? मैं क्यों बर्दाश्त करूं कि मेरा माजी मेरे सामने खड़ा हो? आपने उसे क्यों बुलाया? किसी की इज्जत का ख्याल नहीं। अंबल बेगम ने हड़बड़ाहट में वजाहत देना चाही, मगर उसकी बात खत्म होने से पहले ही ईमान बीच में आ गई। उसकी आंखें नम थीं, आवाज लर्ज रही थी। खाला, मैंने कहा था ना, मैंने आपसे हाथ जोड़कर कहा था कि शाहमीर को वापस भेज दें। वो यहाँ रहेगा तो सब मुझ पर अंगली उठाएंगे। कोई मेरी इज्जत का एहसास क्यों नहीं करता? उसकी बातें मेरे दिल में भी खंजर की तरह लग रही थीं, क्योंकि मैं जानती थी कि आज के दिन सबकी नजरें, सबके तासर और सबके फैसले एक ही समझ जा रहे थे। और वो समझ सिर्फ मुझे और मेरे गुजरे हुए रिश्ते को निशाना बना रही थी। इसी दौरान हाल की फजा में एक और बोझलपन फैलने लगा। मानूर और उसकी माँ की तरफ से एक अजीब जल्दबाजी दिखाई दे रही थी। वो दोनों एक दूसरे को मुसलसल इशारे कर रही थीं, जैसे कोई छिपी हुई बात सामने आने वाली हो और वो उसे रोकने की पूरी कोशिश कर रही हूं। मगर किस्मत के फैसले इंसानों के इशारों के मोहताज नहीं होते। शाहमीर इन दोनों की तरफ बढ़ा। इसकी आंखों में एक ऐसा सुकूत था जिसमें तूफान छिपा होता है। मानूर घबराकर मुस्कुराने की कोशिश करती है। शाहमीर, आप यहाँ? मैं तो सोच रही थी। मगर वो उसकी बात काटकर बहुत आहिस्ता और जख्मी लहजे में कहता है, अब और मत बोलो मानूर, मैं सब सुन चुका हूँ। मानूर और उसकी माँ के चेहरों से सारी रंगत यकदम उड़ गई। इनके अंदर मौजूद खौफ पहली बार जाहिर हुआ। हाल में अब एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। लोग आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटकर जगह बना रहे थे, जैसे किसी हादसे के होने का इंतजार कर रहे हों। शाहमीर ने अपनी नजरें मुझ पर डाली। वो नजर मेरे दिल को इस तरह चीर कर गुजरी जैसे बरसों का दर्द एक लम्हे में टूट कर गिर पड़ा हो। मैंने पहली बार उसकी आंखों में शिकस्त देखी। एक मर्द की शिकस्त, एक मोहब्बत की शिकस्त, एक एतमाद की शिकस्त। और इसी लम्हे मुझे एहसास हुआ कि आज सिर्फ मेरी बहन की मंगनी नहीं, आज कई रिश्ते टूटने के दहाने पर खड़े हैं। और वो हकीकत जिसका हम सबको डर था, वो अब खुलकर सामने आने वाली थी। शाहमीर की आंखों में वो शिकस्त, वो दर्द, वो टूटन सबके सामने तो नहीं थी, मगर मैं उसकी निगाहों में छपी हर
लिरजश को साफ महसूस कर सकती थी। वो आहिस्ता आहिस्ता मानूर और उसकी माँ के सामने आकर खड़ा हो गया, जैसे उसके कदमों से सारा वजूद लर्ज रहा हो। हाल में गहरी खामोशी फैल चुकी थी। लोग एक दूसरे से नजरें चराकर पीछे हट रहे थे, जैसे सब जानते हों कि अब कोई बड़ा धमाका होने वाला है। मानूर ने घबराहट में मुस्कुराने की कोशिश की। शामिर, आप शायद गलत समझे हैं, हम तो बस। मगर उसकी माँ फौरन आगे बढ़कर बोली, बेटा, औरतें कभी कभी जज्बात में। शामिर ने हाथ उठाकर दोनों को चुप करवा दिया। मैं जज्बात में नहीं आया, तुम दोनों मुझे जज्बात में लेकर खेलती रही हो। आज पहली बार समझ आया है कि मैं किन लोगों पर एतमाद करता रहा हूँ। उसकी आवाज दबे हुए गुस्से से कांप रही थी। उसकी आंखें सरख थीं, धोखे की आग में जलती हुई। इन चंद लम्हों में मानूर के चेहरे की सारी मसनूई नरमी खुलकर सामने आ गई। उसका चेहरा जर्द पड़ गया और उसने आंखें झुका लें, जैसे उसे अब समझ आ चुका हो कि इस बार वो बच नहीं सकेगी। मगर उसकी माँ अभी भी हिम्मत करके बोली, शाहमेर, हर बात वैसी नहीं होती जैसी लगती है। कुछ गलत फहमियाँ। ओ चीख की आवाज पूरे हाल में गूंज कर सबके कदमों को मंजमद कर गई। चंद लम्हों के लिए किसी को समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ है। फिर अचानक लोग एक समत तेजी से भागने लगे। हाल का खुशियों भरा शोर एकदम खौफ और बेचैनी में बदल गया। शाहमीर ने चौंक कर पीछे देखा, फिर तेजी से हुजूम की तरफ बढ़ा। मैं भी हिलते कदमों के साथ समत चलने लगी। मेरे दिल में एक खौफ बैठ गया था। लग रहा था जैसे आज की ये रात सिर्फ रिश्तों को ही नहीं, किस्मतों को भी बदलने आई है। हुजूम के दरमियान एक लड़की जमीन पर गिरी पड़ी थी। उसकी सांसें बेतरतीब थीं, चेहरा जर्द पड़ चुका था। लोग परेशान होकर इधर उधर देख रहे थे। मैंने नजदीक जाकर देखा, वो उमान वडोर थी। उसकी माँ उसके पास जमीन पर बैठकर चीख कर रो रही थी। अठो मानूर, बेटी उठो, कोई डॉक्टर को बुलाओ। लोग घबराहट में मोबाइल निकाल रहे थे, मगर किसी को समझ नहीं आ रही थी कि क्या करें। शाहमीर भी तेजी से आगे बढ़कर मानूर के पास झुक गया। उसके चेहरे पर शदीद सदमा था। ये क्या हो गया तुम्हें? उसकी आवाज बेअख्तियार लर्ज गई। मानूर की आंखें आधी खुली थीं, उसके होंठ कपक पा रहे थे। वो कुछ कहना चाहती थी, मगर आवाज नहीं निकल रही थी। उसके हाथ सर्द पड़ते जा रहे थे। उसकी माँ ने रोते हुए शाहमीर का बाजू पकड़ लिया। बेटा, कुछ करो, कोई गलती हो गई है। उसने दवा पी ली, शायद ज्यादा मिकदार में। मैंने उसे समझाया था, मगर यह सुनते ही जैसे पूरा हाल साकत हो गया। दुआ? ज्यादा मिकदार? ये सब क्या था? शाहमीर के चेहरे पर एक गहरा सदमा छा गया। उसने कांपती हुई आवाज में पूछा, किस दवा की बात कर रही हैं? माँ ने रोते हुए चेहरा हाथों में छुपा लिया। वो पिछले कुछ दिनों से बेचैन थी, डरी हुई थी। उसे लगता था कि तुम उसे छोड़ दोगे। उसने कल एक बोतल छिपाई हुई थी, मैंने छीन ली थी, लेकिन आज शायद दोबारा ले ली। मेरे कदम जैसे जमीन में धंस गए। ये सारा ख्याल, उसके पीछे अंदर ही अंदर एक बहुत बड़ा खौफ और कमजोरी छिपी हुई थी, जिसका किसी ने अंदाजा नहीं लगाया था। शाहमीर ने मानूर के हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने मुझ पर यकीन क्यों नहीं किया? तुमने बात क्यों नहीं की? मानूर ने टूटी हुई आवाज में सरगोशी की, क्योंकि मैं जानती थी कि तुम किसी और के लिए टूट रहे थे। मैंने तुम्हें खोना नहीं चाहा। मैंने। उसकी आवाज हवा में तहलील होने लगी। हाल में फजा संगीन हो गई। लोग अब खामोश थे, जैसे सब पर हकीकत का भारी बोझ आ चुका हो। उसी लम्हे पीछे से एक मर्दाना आवाज भरी, एम्बुलेंस आ गई है, रास्ता खाली करें। दो लोग आगे बढ़े और मानूर को उठाकर स्ट्रेचर पर लिटा दिया। मानूर की माँ चीखती, रोती उनके पीछे भागी। शाहमीर कुछ लम्हे वहीं खड़ा रहा। उसके हाथ कांप रहे थे। उसकी आंखों में सिर्फ एक चीज थी, पशमानी खोड़ी। मैंने पहली बार महसूस किया कि इस लम्हे वो दुश्मन नहीं, न धोखेबाज, बल्कि किस्मत के एक ऐसे मोड़ पर खड़ा शख्स है जिसकी दुनिया एक ही दिन में बुखर रही है। एम्बुलेंस के दरवाजे बंद हुए, सायरन बजा, गाड़ी दूर होती गई। शाहमीर वहीं खड़ा उसे देखता रहा, जैसे उसके साथ उसकी सारी ताकत भी चली गई हो। और हाल में सब लोग इस रात को याद रखने वाले थे, क्योंकि आज सिर्फ एक शादी की तकरीब नहीं बिगड़ी थी। आज कई सच्चाइयां बेनकाब हुए, कई दिल जख्मी हुए और कई रिश्ते अपनी बुनियादों से लड़ गए थे। और ये सरफ आगे से तम। एम्बुलेंस के जाने के बाद हाल के अंदर ऐसी खामोशी फैल गई जैसे जिंदगी लम्हा भर के लिए रख गई हो। रोशनियों की चमक मौजूद थी, मगर माहौल में एक ऐसा बोझ
एक ऐसी घटना थी जो सबके दिलों पर बैठ गई थी। लोग एक दूसरे को खाली नजरों से देख रहे थे। कुछ औरतें जेरे लब इस्तगफार पढ़ रही थीं, कुछ मर्द हैरत से सर पकड़े खड़े थे। शादी की खुशियां युक्तम मातम में बदल चुकी थीं। शाहमीर एक कोने में खड़ा था, उसके हाथ अब भी लर्ज रहे थे। वो जानता था कि आज जो हुआ वो सिर्फ एक हादसा नहीं था, ये इस धक्के का नतीजा था जो पिछले दिनों उसने खुद भी बर्दाश्त किया और मानूर ने भी। उसकी आंखों के सामने मनूर के धुंधले चेहरे की तस्वीर बार बार आ रही थी। उसका आहिस्ता आहिस्ता टूटता हुआ वजूद, उसकी कमजोर आवाज, मैंने तुम्हें खोना नहीं चाहा। शाहमीर के लिए ये लम्हा किसी सजा से कम नहीं था। मैंने कुछ कदम आगे बढ़कर शाहमीर को देखा। उसका चेहरा थकावट और अजीत से भरा हुआ था, जैसे एक ही रात में वो बरसों बूढ़ा हो गया हो। उसके दिल पर धड़कनें जोर से चल रही थीं, मगर सांसें भारी थीं। मैं आहिस्ता से करीब गई, मगर कुछ बोलने की हिम्मत न हुई। न जाने क्यों उस लम्हे मुझे उसकी हालत पर तरस भी आया, दुख भी। ये वही शख्स था जिसने कभी मेरे दिल पर गहरा जख्म दिया था, मगर आज किस्मत ने उसे एक और ही दिल में धकेल दिया था। इसी दौरान ईमान के शौहर ने बेचैनी से कदम पटकते हुए चलना शुरू किया। गुस्से से उसके जबड़े सख्त हो रहे थे। ये सब तमाशा, ये सब ड्रामा, हमारी इज्जत का कोई ख्याल नहीं। तुम लोगों के घर के मामले में हम क्यों उलझें? ईमान बेबस सी उसके पीछे चल पड़ी। स्नोटू, प्लीज, अभी जाने से बात और खराब होगी। लोग बातें करेंगे। उसने झटके से हाथ खींच लिया। जो होना था हो गया। मैं ऐसी जगह एक लम्हा भी नहीं रखूंगा। उसका लहजा ऊंचा हुआ तो लोगों की नजरें फौरन इनकी तरफ उठ गई। अंबल बेगम घबरा कर आगे आए। बेटा, मेहरबानी करो, अभी ऐसे मत जाओ। हो सकता है कि जो हुआ वो सिर्फ गलत अंदाजा हो। उसने तंजिया हंसते हुए कहा। गलत अंदाजा? आज यहाँ हर चीज गलत हो रही है। शादी से पहले तमाशा, ड्रामे, चीखें। मैं अपनी बीवी को ले जा रहा हूँ, इस बहस का हिस्सा नहीं बनना। ऐमान की आंखें सरख हो गईं। वो शर्मिंदगी से पलकें झपकने लगी। उसकी हिम्मत न हुई कि किसी से नजरें मिलाए। वो अंबल बेगम को आंख भर कर देख कर आहिस्ता से बोली, खाला, मैं कल आकर समझाऊंगी, बस अभी। उसकी आवाज रंध गई। वो दोनों तकरीब छोड़कर तेजी से बाहर निकल गए। पीछे एक और शर्मिंदगी, एक और जख्म छोड़ते हुए। हाल में मौजूद हर शख्स की सांस जैसे रख गई थी। एक शादी की तकरीब, एक खुशियों भरी रात, एक ऐसा मौका जो यादगार बनना चाहिए था, वो अब एक ऐसी याद में बदल चुका था जिसे कोई दोहराने की हिम्मत नहीं करेगा। शाहमीर ने आहिस्तगी से पशट सीधी की, गहरा सांस लिया और मेरी तरफ पलट कर देखा। उसकी आंखों में कर्ब, शर्मिंदगी और सवाल सब कुछ था। वो आहिस्ता, बहुत आहिस्ता से बोला, क्या मैं वाकई इतना बड़ा हूँ? क्या मेरी वजह से सबकी जिंदगी बर्बाद हो रही है? क्या ये सब गुनाह मेरे सर है? मैंने लब खोले, मगर जुबान जैसे जम गई। न मेरे पास जवाब था, न हिम्मत कि मैं उसे उसकी हकीकत बता सकूं। मैं सिर्फ इतना कह सकी, हर इंसान गलती करता है, मगर कभी कभी गलतियों की कीमत बहुत बड़ी होती है। शाहमीर, उसने आंखें बंद की, जैसे ये लफ्ज भी उसके दिल में तीर की तरह पिवस्त हो गए हों। हाल के कोने सुबह की पहली रोशनी नमोदार हो रही थी, मगर घर के अंदर फैली हुई बेचैनी रात की तरह ही गहरी थी। सब लोग ज़ाहिरी तौर पर शादी की खुशियों में मसरूफ थे, मगर अंदर ही अंदर हर शख्स एक अनजानी कशमकश का शिकार था। ईमान खिड़की के पास खड़ी बाहर लान की तरफ देख रही थी, जहां कुर्सियां सजा दी गई थीं। मेहंदी के रंग अभी तक जमीन पर बिखरे पड़े थे, मगर उसके दिल में सिर्फ एक ही फिक्र घूम रही थी। अगर शाहमीर ने आज सबके सामने कोई ऐलान कर दिया तो वही अपने हाथों की अंगलियां मरोड़ते हुए खुद से बार बार सवाल करती रही। उसके शौहर की नज़रों में जो बेआतमादी, जो गुस्सा और जो रंज छिपा था, वो चीज़ें उसे अंदर से तोड़ रही थीं। वो जानती थी कि अगर आज कहीं भी शाहमीर की मौजूदगी की वजह से कोई बात बिगड़ गई तो सब लोग अंगली उसी पर उठाएंगे। और सच तो ये था कि वो खुद भी अपने दिल की खिड़कियों से ये सच देख रही थी कि वो अब पुराने रिश्ते की सिर्फ एक तस्वीर है जिसे लोग याद कर लेते हैं मगर कबूल नहीं करते। इधर अंबल बेगम खुद भी सख्त उलझन में थीं। वो जानती थीं कि ऐमान की बात बिल्कुल गलत नहीं। इन्होंने अपने अंदर की बढ़ी हुई घबराहट को छिपाते हुए उसे समझाया, बेटी तुम फिक्र न करो, मैं खुद शाहमीर से बात करती हूँ, मगर तुम मजबूत रहो, लोगों के सामने टूटने का मौका कभी न देना। ईमान ने सर हिलाया, लेकिन उसके आंसू पलकों से लड़खड़ा रहे थे। वो बाहर जाकर मेहमानों में शामिल नहीं हुई। वो जानती थी कि कोई भी नजर
उसकी कमजोरी को भानप लेगी। दूसरी तरफ मीमना और मानूर अपनी इसी ढटाई के साथ बैठकर पूरी कहानी को नए रंग में ढालने की कोशिश कर रही थीं। मीमना ने अपनी बेटी को आंखों के इशारे से चुप रहने का कहा और फिर धीमी आवाज में बोली, देखो मानौर, अगर आज शाहमीर के सामने हमारी बात खुल गई ना तो सारी दुनिया हमारे खिलाफ हो जाएगी। तुम्हें हर हाल में उस पर यकीन कायम रखना है, चाहे आंसू बहाकर, चाहे मजलूम बनकर, चाहे उसकी हमदर्दी ले कर, मगर टूटने नहीं देना, समझ आई? मानूर ने घबराहट में कहा, मामा, मगर वो कल रात जिस तरह मुझे देख रहा था ना, जैसे उसे कुछ शक हो गया हो। मेमना ने फौरन उसकी बात काटी, शक तो हो चुका है, बस अब उसे यकीन बनने से रोकना है। उसी दौरान घर के दरवाजे पर हलचल हुई। शाहमीर आ चुका था, मगर आज की उसकी आमद किसी रिश्ते की मजबूरी नहीं बल्कि सच जानने के इरादे के साथ थी। उसकी आंखों में वो खामोश गुस्सा था जो किसी भी लम्हे लावा बनकर फट सकता था। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ, सबकी नजरें उस पर जमी रह गईं। वो सीधा ईमान के वालिद की तरफ बढ़ा, रस्मी सलाम किया, मगर उसके लहजे में एक अजीब सी सख्ती थी जो सबने महसूस की। ईमान का दिल सीने में धड़क धड़क कर जैसे गर रहा था। वो एक कदम पीछे हुई ताकि उसकी नज़र शाहमीर से न मिले। उसे अपने शौहर की नाराज़गी का तो पहले ही इल्म था, अब सबके सामने ये सब होना उसके लिए मज़ीद तकलीफ का बायस बन रहा था। लेकिन असल तूफान इस वक्त उठा जब शाहमीर की नज़र दौड़ बैठे मानौर और उसकी माँ पर पड़ी। इन दोनों के चेहरे ऐसे इत्र गए जैसे किसी ने उनसे उनकी सबसे बड़ी चाल छीन ली हो। शाहमीर के कदम खुद बखुद उनकी जानिब बढ़ने लगे और उसके चेहरे पर वो संजीदगी, वो खामोश शक, जैसे वे फैसला कर चुका हो कि आज कुछ न कुछ ज़रूर खुलकर रहेगा। शाहमीर के हर कदम के साथ हाल में मौजूद लोगों की सांसें रखने लगे। उसके चेहरे पर गुस्से, सदमे और हैरत का एक अजीब सा मिला जुला एहसास था जिसे कोई छिपाने की कोशिश भी नहीं कर रहा था। उसकी नज़रें मानूर और उसकी माँ पर जमी थीं और हर नज़र एक सवाल, हर आंख एक चोट, हर सांस एक धड़कन में लर्जा थी। मानूर की माँ ने झटके से सर झुकाया और अपना चेहरा हाथों में छिपा लिया, मगर शाहमीर की नज़र से बचना मुमकिन न हुआ। वो जानती थी कि उसकी छिपी हुई चालें अब बेनकाब होने वाली हैं और हकीकत की तेज़ रोशनी में वो सब कुछ छिपाने की कोशिश नाकाम हो जाएगी। ईमान जो कोने में खड़ी थी, अपने दिल की धड़कनें सुन रही थी। वो जानती थी कि शाहमीर की मौजूदगी आज सिर्फ मानूर के लिए नहीं बल्कि उसके लिए भी एक इम्तिहान है। उसके दिल में खौफ और फिक्र की एक लहर दौड़ गई कि कहीं उसकी खुददारी या इज्जत पर कोई हर्फ न आ जाए। उसने खुद को संभाला, सांस गहरा लिया और कोशिश की कि लोग उसकी बेचैनी को न देख सकें, मगर अंदर ही अंदर वो लर्ज रही थी। शाहमीर एक लम्हे के लिए रख गया और फिर आहिस्ता आहिस्ता मानूर के करीब बढ़ा। हर कदम के साथ हाल में एक किशमकिश पैदा हो रही थी। लोग धीरे धीरे पीछे हटे, कुछ ने अपने हाथ मुंह पर रख लिए जैसे किसी बड़े राज के मंजर को देखने वाले हों। मानूर की आंखें खौफ से फैल गई थीं और वो जानती थी कि अब किसी बहाने या झूठ की मदद से अपने आप को बचाना नामुमकिन हो चुका है। शाहमीर ने धीमी मगर वाज़ेह आवाज में कहा, मानूर, आज मुझे सब कुछ जानना है। तुमने मुझे किस दरिया में धकेल दिया? मैं हर बात का जवाब चाहता हूँ। मानूर की सांस रुक सी गई, उसकी होंठ कांपने लगे। वो कुछ कहना चाहती थी मगर अल्फाज हलक में फंस गए। उसकी माँ ने घबरा कर कहा, बेटी बस खामोश रहो, कुछ न कहो, ये लम्हा खतरनाक है। मगर शाहमीर की आंखें इतनी गहरी थीं कि इसकी एक खामोशी भी बेकार हो गई। वो सब कुछ पढ़ सकता था, झूठ, खौफ, छुपी हुई हकीकतें। ईमान के दिल की धड़कन तेज हो गई। वो देख रही थी कि शाहमीर की हर हरकत, हर लफ्ज, हर नज़र, सब कुछ एक निहायत अहम लम्हे की तैयारी कर रहा था। ये लम्हा न सिर्फ मानौर के लिए बल्कि पूरे खानदान के लिए फैसला कुन था। हाल में एक अजीब सी घटन फैल गई और हर शख्स खामोशी में अपने दिल के खौफ और सवालात से नबर्दाज़मा हो रहा था। अब वक्त करीब आ चुका था, वो लम्हा जिसका सबको इंतज़ार था, जब पर्दा हटेगा, सच सामने आएगा और हर रिश्ता, हर ताल्लुक़ अपनी असल सूरत में नमूदार होगा। और शाहमीर जो पहले सिर्फ एक शख्स था, अब हकीकत का सामना करने वाला एक वाहिद इंसान बन चुका था। हाल में एक अजीब सा सुकूत छा गया था। खुशियों के चिराग तो जले हुए थे, मेहंदी के रंग अभी भी फर्श पर बिखरे पड़े थे, मगर इन सब रंगों में एक तलखी, एक उदासी घुल चुकी थी जो हर नज़र में झलक रही थी।
शाहमीर, जो अब मानूर और उसकी माँ के सामने खड़ा था, उसकी नजरें जैसे हर छिपी हुई बात को पढ़ रही थीं। उसके चेहरे पर गुस्सा, सदमा और हैरत के मिले जले तासरात थे, और हर एक लफ्ज जो वो बोलने वाला था हाल के माहौल को बदल देने वाला लग रहा था। मानूर की सांसें तेज हो रही थीं और उसके हाथ कांप रहे थे। वो जानती थी कि अब कोई बहाना, झूठ या बहादुरी उसे बचाने वाला नहीं। उसकी माँ बार बार उसके कान में कुछ कह रही थी, मगर शाहमीर की नजरें जैसे सब कुछ पढ़ रही थीं, छिपी हुई धोखेदही, झूठ, खौफ और कमजोरी। हाल में मौजूद लोग खामोशी से पीछे हट गए। हाल में खामोशी एक दबीज पर्दे की तरह फैल गई थी। रोशनियों की चमक और खुशियों की आवाजें जो चंद लम्हे पहले हाल में गूंज रही थीं, अब जैसे गायब हो गई थीं। हर किसी की निगाहें शाहमीर और मानूर पर जमी थीं, और हर दिल अपने अंदर एक खौफ, इत्तराब और बेचैनी का बोझ महसूस कर रहा था। शाहमीर की नजरें हर छिपी हुई हकीकत को चीर कर देख रही थीं। हर झूठ, हर ड्रामा, हर छिपी हुई बात अब बेनकाब होने के करीब थी। उसकी आंखों में एक अजीब सा गुस्सा और मायूसी थी, जिसने हाल में मौजूद हर शख्स के दिल में सनसनाहट पैदा कर दी। मानूर अपने आप को सहलाने की कोशिश कर रही थी, मगर उसके कांपते हुए हाथ और लराजते हुए लब उसके अंदरूनी खौफ को जाहिर कर रहे थे। वो जानती थी कि अब कोई बहाना, कोई झूठ या कोई चाल उसे बचाने वाला नहीं। उसकी माँ मुसलसल उसके कान में कुछ कह रही थी, मगर शाहमीर की गहरी नजरें सब कुछ पढ़ रही थीं। हाल के लोग खामोशी के साथ पीछे हट रहे थे। कुछ ने अपने हाथ मुंह पर रख लिए, और हर शख्स अपने दिल की धड़कन सुनने में मसरूफ था। शाहमीर ने आहिस्ता कदम बढ़ाते हुए मानूर के करीब पहुंचकर कहा, मानूर, अब बस, मुझे हर चीज का जवाब चाहिए। मुझे बताओ कि तुमने मुझे क्यों धोखा दिया, क्यों मेरी कमजोरियों का फायदा उठाया। मानूर की सांसें तेज हो गई थीं, उसके होंठ कांप रहे थे और अल्फाज हुलक में फिनस गए थे। उसकी माँ उसे दबाने की कोशिश कर रही थी, मगर शाहमीर की नजरें इतनी गहरी और पख्ता थीं कि उसकी चालें, झूठ और खौफ सब बेमानी लगने लगे। ईमान, जो कोने में खड़ी थी, अपने दिल की धड़कनों को सुन रही थी। वो जान रही थी कि शाहमीर की हर हरकत, हर कदम और हर लफ्ज एक फैसला के लम्हे की तैयारी कर रहा है। ये लम्हा न सिर्फ मानूर के लिए बल्कि पूरे खानदान के लिए एक आजमाइश था। हाल की फजा में घटन बढ़ती जा रही थी। हर शख्स अपने अंदर मौजूद खौफ, सवालात और हैरत के साथ दबाव महसूस कर रहा था। शाहमीर की आवाज में नरम लहजा था, मगर उसमें अज़्म और पख्तगी झलक रही थी। मानूर, खामोशी का वक्त खत्म हो गया। सच सामने आएगा, चाहे तुम चाहो या न चाहो। ये अल्फाज सुनकर मानूर के अंदर खौफ और इत्तराब उनकी लहर दौड़ गई। हाल में मौजूद हर शख्स खामोशी और किशमकिश की उस कैफियत में मुब्तला हो गया कि ऐसा लग रहा था जैसे वक्त ने सांस रोक दी हो। हर लम्हा, हर नज़र, हर सांस अब फैसला का मोड़ पर था, और यही लम्हा करीब आ चुका था जब पर्दा हटेगा, सच्चाई बेनकाब होगी, हर राज सामने आएगा, और सब रिश्ते, सब जज्बात, सब ताल्लुकात अपनी असल हालत में नमूदार होंगे। शाहमीर के लिए ये लम्हा जिंदगी बदल देने वाला था, और सबके लिए एक ऐसी हकीकत लेकर आने वाला था जिससे कोई बच नहीं पाएगा। हाल में मौजूद हर शख्स की सांसें एक अजीब सुकूत में घुल गई थीं। खुशियों की रौनक, हंसी खुशी और शादी की आवाज़ें जैसे एक पल में गायब हो गई थीं। हर आंख में खौफ, हर दिल में इत्तराब और हर सांस में बेचैनी थी। शाहमीर की नज़रें मानूर और उसकी माँ पर जमी थीं, और हर हरकत में एक खामोश सवाल छिपा था, ये सब क्या होने वाला है? उसकी आंखों में गुस्सा, मायूसी और सदमे का मिला जला एहसास साफ नजर आ रहा था, जिसने हर किसी के दिल में सनसनाहट पैदा कर दी थी। मानूर जमीन की तरफ झुकी हुई खड़ी थी। उसके होंठ कांप रहे थे और हाथ लर्ज रहे थे। उसके दिल की धड़कनें तेज थीं, और वो जानती थी कि अब कोई बहाना, कोई चाल या झूठ उसे बचाने वाला नहीं। हाल में घटन और सुकूत उस कदर नुमायां हो चुका था कि हर किसी की सांसें रखने लगी थीं। खुशियों के चिराग, मेहंदी के रंग और शादी की रौनकें जैसे किसी पल में बेमानी हो गई थीं। हर आंख में खौफ और हर दिल में इत्तराब झलक रहा था। शाहमीर की नजरें मानूर और उसकी माँ पर जमी हुई थीं, और हर एक हरकत से ऐसा लग रहा था जैसे वो छुपी हुई हर हकीकत को परख रहा हो। उसके चेहरे पर गुस्सा, मायूसी और सदमा साफ नजर आ रहा था, और हर लफ्ज जो वो बोलने वाला था हाल के माहौल को बदलने की ताकत रखता था। मानूर के हाथ लर्ज रहे थे और वो जमीन की तरफ झुकी हुई थी। उसके होंठ कांप रहे थे और दिल की धड़कनें उसकी हिम्मत तोड़ने लगी थीं।
वो जानती थी कि अब कोई बहाना झोट या चाल उसे बचाने वाला नहीं। उसकी माँ मुसलसल उसके कान में कुछ कह रही थी, मगर शाहमीर की नजरें इतनी गहरी थीं कि अब कोई छप नहीं सकता था। हाल के लोग धीरे धीरे पीछे हट रहे थे। कुछ ने अपने हाथ मुंह पर रख लिए और हर शख्स अपने दिल में खौफ और सवालात के साथ दबाव महसूस कर रहा था। शाहमीर आहिस्ता आहिस्ता मनूर के करीब बढ़ा और धीमी मगर मजबूत आवाज में बोला, मनूर, आज मुझे सब कुछ जानना है। मुझे बताओ कि तुमने मुझे क्यों धोखा दिया, क्यों मेरी कमजोरियों का फायदा उठाया। मानूर की आंखें नम थीं, अल्फाज गले में फंस गए और वो कुछ न कह सकी। उसकी माँ उसे दबाने की कोशिश कर रही थी, मगर शाहमीर की नजरें इतनी पख्ता और संजीदा थीं कि हर झूठ और हर खौफ बेमानी लगने लगा। ईमान जो कोने में खड़ी थी, उसके दिल की धड़कनें और भी तेज हो गई थीं। वो देख रही थी कि शाहमीर की हर हरकत, हर लफ्ज और हर नजर एक फैसला, कुल लम्हे की तैयारी कर रही है। हाल में घटन बढ़ती जा रही थी। हर शख्स अपने अंदर मौजूद खौफ, हैरत और इत्तराब के साथ दबाव महसूस कर रहा था। शाहमीर का लहजा नरम था मगर उसमें पख्तगी और इज़्म साफ झलक रहा था। मनूर, खामोशी का वक्त खत्म हो गया। सच सामने आएगा, चाहे तुम चाहो या न चाहो। ये सुनते ही मानूर के अंदर खौफ और इत्तराब उनकी लहर दौड़ गई। हाल में मौजूद हर शख्स खामोशी और कशमकश की कैफियत में मुब्तला हो गया। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वक्त ने सांस रोक दी हो। हर लम्हा, हर नज़र, हर सांस अब फैसला के मोड़ पर थी। अब वो लम्हा करीब आ चुका था जब पर्दा हटेगा, सच्चाई बेनकाब होगी, हर राज सामने आएगा और सब रिश्ते, सब जज्बात, सब ताल्लुकात अपनी असल हालत में नमूदार होंगे। शाहमीर के लिए ये लम्हा जिंदगी बदल देने वाला था और सबके लिए एक ऐसी हकीकत लेकर आने वाला था जिससे कोई बच नहीं पाएगा। शाहमीर की नजरें मनोर पर जम गई थीं और हर लम्हा ऐसा लग रहा था जैसे हाल में वक्त रख गया हो। उसकी हर सांस, हर झुकाव, हर कदम हाल में मौजूद हर शख्स के दिल पर भारी पड़ रहा था। मनोर जमीन की तरफ झुकी हुई थी, उसके हाथ लरज रहे थे और उसके लब कांप रहे थे। उसके दिल की धड़कनें इतनी तेज थीं कि हर धड़कन हाल में मौजूद खामोशी को चीर रही थी। वो जानती थी कि अब कोई बहाना या झूठ उसे बचाने वाला नहीं। उसकी माँ मुसलसल उसके कान में कुछ कह रही थी मगर शाहमीर की नज़रें इतनी तेज और पख्ता थीं कि हर छुपी हुई बात, हर खौफ और हर झूठ बेनकाब हो चुका था। हाल में लोग खामोशी के साथ पीछे हट गए। कुछ ने अपने हाथ मुंह पर रख लिए और हर कोई अपने दिल में खौफ, हैरत और उलझन महसूस कर रहा था। शाहमीर हंसता आहिस्ता मनूर के करीब आया और धीमी मगर पख्ता आवाज में बोला,